جناب اسلم قریشی صاحب سے، جناب اسلم قریشی صاحب تشریف لائیں. یہ ہمارے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں ویمن ونگ کے، اور ان کا جو سبجیکٹ ہے، ان کا جو عنوان ہے وہ پولیٹیکل امپاور. ہم معافی چاہتے ہیں سر کہ آپ کو دیر سے ہم نے بلایا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں. آپ آئیے اور اپنے جو آپ کے احساسات ہیں اسے بیان کیجیے. جی سر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، صدر محترم جناب سر عمر علی صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سلیم احمد صاحب، جنرل سیکریٹری نیشنل جناب عاشقین صاحب، اور تمام رفقاء کرام، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں. میں نے قرآن مجید کی بہت مختصر سورہ العصر کی تلاوت کی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، والعصر یعنی زمانہ گواہ تھا، زمانہ گواہ ہے اور زمانہ گواہ رہے گا. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں تھا، خسارے میں رہے گا اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اس پہ ثابت قدم رہے، اور جو اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں آئی ہیں ان سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ ثابت قدم رہے، ان تمام چیزوں کو انگیز کرتے رہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ انسان خسارے سے بچ سکتا ہے اور انسانیت خسارے سے بچ سکتی ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پاور امپاورمنٹ کی، پولیٹیکل امپاورمنٹ کی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہوگا تو ہم ایک بہت بڑے فائدے سے مستفید ہونے نہیں پائیں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم حاصل نہیں کرنے پائیں گے. یہاں پہ کامیابی کا راستہ جو بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا، عمل صالح اختیار کرنا اور حق کی تلقین کرنا اور اس پہ ثابت قدم رہنا. عمل صالح سے مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی وسعت والا لفظ ہے. عمل صالح کی ڈیفینیشن اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کو چند لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ہے. زندگی کے پورے معاملات کو اس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا شعبہ زندگی کا نہیں بچتا ہے جس میں ہم عمل صالح اختیار نہ کریں. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلے جو عمل صالح ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بدن کی پاکی کرتے ہیں، بدن کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا عمل جو آتا ہے وہ نماز کا. اس کے لیے ہم غسل کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے
यानी कि अपने कल्ब और रूह की पाकी। तो मामला सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम अपने कल्ब और रूह की पाकी करते हैं और अपने आप को बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं, भलाइयों की तरफ बढ़ते हैं। तो बात जब यहाँ से शुरू होती है कि हम खुद बुराइयों से बचना शुरू करते हैं और भलाइयों की तरफ जाते हैं, तो क्या हम इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा घर और घराना, हमारा खानदान और हमारा मोहल्ला जो है वो भी पाक रहे, साफ रहे, बुराइयों से दूर रहे और नेकी की तरफ हम उनको बुलाएं? क्योंकि बगैर बुराइयों के पाक किए हुए कोई माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर पूरा माशरा बुराइयों में लथपथ है और वो बुराइयां किए जा रहा है तो वो तरक्की नहीं कर सकता है। अगर भलाई नहीं करेगा तो वहाँ पर बदअमनी फैल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अमल सालेह तैयार करना चाहते हैं और इसको बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, इसी तरीके से कि जैसे गंदगी फैली हुई है तो हम पहले अपने घर को साफ करें। अगर मोहल्ले में गंदगी फैली हुई तो हम मोहल्ले को साफ करें, वरना वो गंदगी हमारे घर में दाखिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अपने घर को जो है एक अच्छा माशरे में, एक अच्छे खानदान में तब्दील करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने पड़ोस को भी जो है वो एक अच्छा माशरे में तश्कील करें, एक अच्छा माशरा बनाएं? और क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मोहल्ले को पाक साफ करें? और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने शहर को पाक साफ करें और शहर से गंदगियाँ दूर करें? अब जाहिर सी बात है कि ये शहर की गंदगी दूर करना, इसको करप्शन से पाक करना और बुराइयों से दूर करना और इसमें तमाम बुरे जो लोग हैं उनसे उस शहर को पाक करना, ये मुमकिन नहीं है कि अकेले आदमी कोई काम कर सके। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम होगा कि उस सिस्टम के जरिए से जो है हम उस सोसाइटी को पाक साफ करें, उस शहर को पाक कर सके। सिर्फ यही नहीं कि हम उसकी गंदगी को कूड़े करकट से साफ करें, बल्कि इंसान की जो अखलाकी बुराइयां हैं, इंसानियत जो जराइम पेश आए हैं, उनकी रोकथाम के लिए हम काम करें। तो उसके लिए एक सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम कहाँ से शुरू, छोटा से छोटा जो सिस्टम होता है वो हम जानते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम होता है। कि अगर हम इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर दाखिल हो जाएं या वहाँ के हम चेयरमैन बन जाएं, तो उसके जरिए से हम अपने शहर को पाक साफ कर सकते हैं। एक हाइजीनिक जो है वो एक माहौल बना सकते हैं जिससे बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसके साथ साथ हम जराइम की रोकथाम के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाए तो ये कैसे हासिल होगा? ये जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है। उस पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप इंटर नहीं करेंगे तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंटर नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में अंदर दाखिल होने के लिए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दाखिले के लिए हमको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, लोगों से हम मिलें, शहर के लोगों की जो है वो खुशियों में शामिल हों, उनके दुख दर्द को बांटें हम। तो असल में ये जो है एक तरीके से तो ये है कि हम अपने शहर को जराइम से भी पाक करना चाहते हैं और अपने शहर को गंदगियों से पाक करना चाहते हैं। क्योंकि साथ साथ अगर आप देखें कि ये अमल साले भी है, ये आप नेक अमल भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है या ये जो चीजें हैं ये कुरान हमको सपोर्ट करता है। यानी कुरान हमसे ये कहता है कि आप ऐसी चीजों के एंगेज करें जिसके जरिए से न सिर्फ ये कि अपने खानदान को आप पाक साफ करें जराइम से, न सिर्फ ये कि अपने अखलाक को सुधारें, बल्कि अपने शहर को भी सुधारें, अपने शहर को भी बुराइयों से पाक करें, अपने शहर की गंदगियों से पाक करें। जाहिर सी बात है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं और हमको उस पूरे सिस्टम में दाखिल होना पड़ेगा। तो जरूरी ये होता है कि रियल में अगर हम अमल सालेह तैयार करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ा के काम करना चाहते हैं तो हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दाखिल होना पड़ेगा और उस तरीके से समाज और सोसाइटी को पाक साफ करना पड़ेगा। और ये भी अमल सालेह ही है, यानी ये एक वसअत है उसकी जो हमारे जिस्म से शुरू हुई थी कि हम अपने जिस्म की गंदगी साफ करें से लेकर के शहर की गंदगी को साफ करने तक का अमल ये जारी रहता है। इसी तरीके से अगर हम अपने शहर को और अपने आसपास की तहसीलों को पाक साफ करना चाहते हैं तो फिर हम आगे बढ़कर जो है वो और वसअत इख्तियार करेंगे, हम उन तमाम चीज़ों में इंगेज करेंगे, बल्कि हम पावर हासिल करने की कोशिश करेंगे। उस पावर के जरिए से जो है हम उन बुराइयों को दूर कर सकेंगे, उन गंदगियों को दूर कर सकेंगे। और इसी तरीके से जब हमारे हाथ में पावर होगी तो हम अस्पताल यानी फलाह और बहबूद के काम भी कर सकते हैं, यानी हम खिदमत खल्क भी कर सकते हैं। यानी खिदमत खल्क का काम भी जो है वो बगैर पावर के नहीं हो सकता अगर हम बड़े पैमाने पे करना चाहें। तो ये सिलसिला है, इस्लाम हमको इसकी इजाज़त सिर्फ इजाज़त ही नहीं देता बल्कि ये कहता है कि ये काम आपको करना है।
यानी अम्ल साले तैयार करना है, तो अम्ल साले को आप बढ़ा दीजिए और इसको मुल्की सतह पे अगर आप फैला दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है। तो आपको जो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, जो पावर चाहिए, वो जाहिर सी बात है कि जब तक आप पॉलिटिकल सिस्टम में दाखिल नहीं होंगे, जब तक आप बड़ी बुराइयों को दूर नहीं कर सकते हैं और लोगों की जो है वो अच्छाइयों की तरफ, यानी अगर अच्छे काम करना भी चाहेंगे, अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो मुमकिन नहीं है ये। तो मालूम ये हुआ कि बगैर पावर के न तो कोई अच्छा बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे काम किए नहीं जा सकते, यानी बड़े बड़े अस्पताल नहीं खोले जा सकते हैं, रिसर्च सेंटर नहीं खोले जा सकते हैं, और बुराइयों की रोकथाम भी नहीं की जा सकती अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो। यानी बड़े बड़े जराइम, करप्शन, रेप, ये वो बदगुमानियां, ये तमाम चीजों को आप रोक, इन बुराइयों को आप रोक नहीं सकते जबकि आपके हाथ में पावर न हो। इसका मतलब ये है कि पावर हासिल करना एक दीनी फरीज़ा भी है हमारा। तो वक्त नहीं है इंशाअल्लाह ताला, वरना मैं बहुत तफसील से गुफ्तगू करता है, लेकिन ये है कि कम से कम एक बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में आना और पावर को हासिल करना ये एक दीनी फरीज़ा है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असलम कुरैशी साहब, आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की। मैं हमारे निज़ामुद्दीन साहब बैठे हैं यहाँ पे, और मैं आपको सर 3 मिनट दे रहा हूँ, बराए मेहरबानी अपनी बात रखिए। आप हमारे दिल्ली के सूबाई सदर हैं निज़ामुद्दीन कुरैशी साहब, आप बहुत देर से बैठे हैं तो आप अपनी बात रखिए, और इसके बाद मैं तैयारी कर रहे हैं, हमारे हाजी शराफत कुरैशी साहब का नंबर है, मैं उनको बुलाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी दीनदार हजरात, नेशनल प्रेसिडेंट जनाब सनोवर अली कुरैशी साहब, जनाब सलीम कुरैशी साहब, जनाब आसिकिन कुरैशी साहब और अन्य सभी हजरात जो यहाँ पे आए हैं दिल्ली के इस सेकंड अधिवेशन को अटेंड करने के लिए, उनका दिल्ली के प्रेसिडेंट की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूँ कि आप दिल्ली आए और हमको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से, कर्नाटक से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं। तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप आए हो हमें सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। यह आपका जज्बा है जो आप इतनी दूर के सफर करके आप आए हो। मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का नेशनल टीम, खासकर सनोवर अली कुरैशी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे दिल्ली सदर के रूप में चुना। 1 साल पहले जब कुरैश कॉन्फ्रेंस बनी और मुझे प्रेसिडेंट बनाया, तब से मैंने अपनी दिल्ली टीम का गठन करने की कोशिश में जुट गया, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में सबसे पहले प्रदेश की पहली टीम बनाई गई, और दिल्ली में अब तक 6 जिलों की टीमें बनाई जा चुकी हैं। 6 जिले के प्रेसिडेंट और उनकी टीमें अब तक बनाई जा चुकी हैं। अभी तक 50+ लोगों को मैं दिल्ली में टीम का हिस्सा बना चुका हूं, जो कि बहुत ही कम समय में हुआ है। होने को तो बहुत सारे लोग हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमें चुन चुन के लोगों को देने हैं, जिससे कि हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। दिल्ली टीम ने दिल्ली के कई जगह पर मीटिंगें करके वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की और उनका समाधान भी निकाला। एक अध्यापक होने के कारण मैंने बच्चों की तालीम और उनके कैरियर काउंसलिंग पर जोर दिया। ढूंढ ढूंढ कर 13 कुरैशी समाज के अध्यापकों को अपनी टीम में जोड़ा और अन्य बिरादरी के अध्यापकों को भी अपने इस तालीमी बेदारी के काम में जोड़ने की कोशिश की है। हमने दिल्ली के कैरियर काउंसलिंग सेंटर हाजी फुरकान साहब के घर पर चलाया,
जहां हर हफ्ते 2 टीचर की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने वहां पे 9th और उससे अबव क्लासों के बच्चों के लिए गाइडेंस का काम किया। वे अपने लिए क्या कैरियर चुने, हमने इसके लिए कोचिंग सेंटरों की भी सहायता ली गई। कोचिंग सेंटरों में भी जाके हमारे जो टीचर्स थे, इंक्लूडिंग मी, और सनोवर साहब को भी हम बुला लेते थे, क्योंकि वो जो कानून के क्षेत्र में है, तो कानून के क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए सनोवर भाई जैसे जो है गाइडेंस के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। तो हम सब ने मिलके इस तरीके की कैरियर गाइडेंस सेंटर और कोचिंग सेंटर में जाकर उनका बच्चों का मार्गदर्शन किया। हमने आसान निकाह के लिए भी कुरैशी मैट्रिमोनियल ग्रुप को बनाया हुआ है, जिसमें बहुत से बायोडाटा पोस्ट करते रहते हैं और उसमें एजुकेटेड लड़के लड़कियों का मैच करके उनके घर वालों को घर बैठे रिश्ते मुहैया करवा रहे हैं और उनको समझाया जा रहा है कि वे बिना दान दहेज के शादियां करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी भी पाई है। हमारे इस ग्रुप से कई परिवारों के रिश्ते घर बैठे मिले हैं और वे शादियां घर बैठे ही बिना दान दहेज के और बिना रस्म और रिवाज के हो रही हैं। कई सारी शादियां हो चुकी हैं ऐसे। और इससे बिचौलियों का रोल भी खत्म किया गया है, जो अपने कमीशन के चक्कर में झूठ सच बोलकर गलत लोगों के रिश्ते करवा देते हैं और बाद में वो परिवार और उनके लड़के लड़कियां लड़ते रहते हैं। इंशाअल्लाह इसने और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करके लोगों को फायदा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों की तालीम और गाइडेंस के लिए ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हम बच्चों को नए नए कोर्सों और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद तालीम के क्षेत्र में हूँ, लेक्चरर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में और तालीम की वैल्यू से परिचित भी हूँ और अपनी बिरादरी के लोगों को तालीम की जरूरत से परिचित कराना चाहता हूँ। इस्लाम में इल्म यानी तालीम हासिल करने पर बहुत जोर दिया गया है, इसकी अहमियत दी गई है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस्लाम ने कहा है, इस्लाम में इल्म के हैसियत और महत्व को अंदाजा इस बात से समझा जा सकता है कि 400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ था, तो उसमें पहली सूरत जो नाजिल की गई थी उसका पहला शब्द इकरा था। इकरा है, इकरा का अर्थ पढ़ो और समझो है, यानी कुरान की शुरुआत पढ़ने के आह्वान से हुई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आपको इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, और हम यहाँ पे रहते हुए भी इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। हमारे प्यारे नबी ने यह भी कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो, यानी इल्म हर समय हासिल करना चाहिए। आज के हालात को देखते हुए इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी हो जाता है, और मुसलमानों में और भी बुरी हालत कुरैशी कम्युनिटी की है। इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इल्म की अहमियत इस समय क्या है, इसके लिए मैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। बस खत्म हो गया। वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम में
ملک کی ایک عظیم دانشور شخصیت، وقت کے سر سید اور تعلیمی میدان میں ایک بہت نمایاں نام محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ایک بار آپ سے گزارش کروں گا پلیز ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیجئے۔ ہم لوگ یہاں صرف ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن حکم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں اعزاز کے لیے مدعو کرنا ہے، تو میں محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے گزارش کروں گا پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ شاہین گروپ کے چیئرمین ہیں اور اس وقت ملک بھر میں جو مدرسہ پلس کی ایک تعلیمی تحریک شروع ہوئی ہے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں 2000 سے زائد بچے مدرسوں میں رہ کر فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، آپ اس تحریک کے لیڈر ہیں اور ملک بھر میں آپ کے انسٹیٹیوشنز میں 30,000 سے زائد مسلم اور نون مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ کچن تھوڑا سائڈ سے نیچے دینا چاہیے تھا، چلو مارو، ارے کلک مارو۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، شاہین ادارہ ملک میں وہ واحد مسلم تعلیمی ادارہ ہے جو 1% آف میڈیکل سیٹ پورے ملک بھر میں دے رہا ہے، اور کرناٹکا اسٹیٹ میں 13 سے 14% میڈیکل سیٹ شاہین گروپ کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ ایسے رہنے دو، مسلم گروپ میں کہاں گھوم رہا ہوں، بس اسی کو رہنے دو۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز تشریف لائیں اور 2 منٹ کے لیے اپنے تاثرات۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ذرا نوازی ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ یہ پورے انڈیا بھر سے لوگ ہیں۔ بس ایک میسیج دینا چاہوں گا، بات ہو رہی تھی شادی کے ساتھ شادی کی، یہ بہت اہم بات ہے اور یقیناً وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ اس طرف توجہ دیجیے اور نسل کو بچائیے، کیونکہ نسل ہی اصل ہے۔ نسل کو تعلیم سے صرف تعلیم یافتہ نہیں بنانا، تہذیب یافتہ بنانا ہے۔ ہماری نسل تعلیم یافتہ ہو، تہذیب یافتہ ہو، یہ دینے والی بنے، لینے والی نہیں، اس کو دینے والی بنانا ہے۔ اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ رہیے، اپنی تہذیب کو مٹا کر رہیے، یہ ممکن نہیں، یہ ایسی زندگی ہم کو نہیں چاہیے۔ اپنی تہذیب کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے۔ عجیب و غریب حالات بن رہے ہیں، بے راہ روی بڑھتے جا رہی ہے، ڈسٹریکشن بڑھ رہے ہیں، یہ موبائل کی مصیبت اور کو ایجوکیشن کی مصیبت۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ ہماری گھر کی تربیت کے ڈیپینڈ ہوتا ہے، بلکہ غلط ماحول کے اداروں میں، انسٹیٹیوشن میں اپنی اولاد کو بگڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے طرف توجہ دینا ہے اور کو ایجوکیشن سے بچنا ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز قائم کرنا، انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سادگی اختیار کرنا ہے، فضولیات ختم کرنا ہے، نسل کو بنانا ہے، یہ نسل کو یہ بری عادتوں سے بچانا ہے، وہ گٹکا ہے یا ڈرگس ہیں، رات میں 12 بجے تک گھومنے کرنے کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کہ ہم 10 سال 20 سال محنت کریں، نسل کو بنائیں، فیوچر کو بنائیں، اور حالات کو بدلا جا سکتا ہے، حالات کو بدلا جا سکتا ہے، وقت لگے گا۔ 20 سال 25 سال 50 سال کو قوموں کی زندگی میں وقت کہتے ہیں، وقت لگے گا، 20 سال لگائیے، بدل دیجئے، 24 کو 42 کر دیجئے، اور اس وقت حالات ہمارے انشاءاللہ ہماری نسلیں جو ہے اس وقت خوشحال زندگی گزارے۔ اگر ہماری نسل طاقتور ہے تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے۔ یہ احساس کے ساتھ اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے
کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، میری اولاد میرے لیے جنت میں حصول کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج کل نسل کو ماموں، چاچا، نانا، دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں، کوئی نصیحت نہیں کر رہا۔ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں نواز بھتیجے بھانجے کو، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں بیٹا یہ پینٹ پھٹا ہوا کیوں ہے تمہارا، نہیں پوچھ رہے ہیں۔ جبکہ کپڑا پھٹ جائے تو سی کر پہننا سنت ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے، کل بھی اسی پروگرام میں ایک نوجوان کو پکڑ لیا، پوچھا بیٹا کیا آپ خود خوش ہیں اس سے؟ نہیں میں خوش نہیں ہوں۔ کیا امی ابا خوش ہیں؟ تو نہیں ہیں۔ جن کے امی ابا خوش نہیں ہیں ان سے اللہ بھی خوش نہیں۔ یہ احساس دلانا ہے نسل کو۔ نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں نواسی پوتری کو، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مروبیت ہو گئی ہے، نواسی پوتری کو یہ نصیحت نہیں کر رہے بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں۔ یہ پتہ نہیں وہ بیماری کہاں سے آ گئی اور ہمارے معاشرے میں گھس گئی۔ لیگنس نام کی ایک لیگنس نام کی بیماری ہے، ہمارے معاشرے میں گھس گئی اور سب کے سب نظر انداز کر رہے ہیں، سب نظر انداز کر رہے ہیں، کہیں اس کی بات گفتگو نہیں ہو رہی۔ تو میں اب چاہوں گا آپ لوگ اب مجھے بتائیے کہ آپ اس بات کے میرے قائل ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے اگر کسی کے گھر میں ہیں لیگنس ہے تو اس کو آج جلانا چاہیے، جلانا چاہیے۔ آج ہماری بہنیں کیا بولتے ہیں؟ آج جلانا چاہیے، آج جلانا چاہیے۔ کسی کے گھر میں ہے تو آج جلانا چاہیے۔ اور شادیوں کے سلسلے میں میں بولتا ہوں نکاح کے دن کے کھانے کو ختم کیجیے نا، نکاح کے دن کے کھانے کو ختم کیجیے، ارادہ کیجیے اور وعدہ کیجیے۔ کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، انقلاب انشاءاللہ یہاں سے آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اب ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہر ہے پورے انڈیا کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگ کچھ غریب بچوں کو چن کے دیجئے، ڈراپ آؤٹ کو، آپ کی برادری کے ہو، کوئی اور ہو، چن کر دیجئے۔ 13 سال سے 18 سال کے درمیان کے بچے، 100 بچے چاہیے آپ لوگوں کے ذریعے، فری رہنا کھانا پڑھنا ان کے لیے۔ وہ بچے جو زندگی میں اسکول نہیں گئے، ڈراپ آؤٹ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بیکار پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اس لیے مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، فارغ ہیں، اس لیے ماں باپ ان کو نوکری کرا رہے ہیں، جاب کرا رہے ہیں۔ ان کو بھیجیے، رہنا کھانا پڑھنا سب فری۔ ایسے بھی فی الحال 52 سینٹر چل رہے ہیں ہمارے ایسے بچوں کے لیے جو آئندہ سال 90 ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 5000 ایسے بچوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلا تو اور بہت کام ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کوئی بلڈنگز ہیں، کوئی آرگنیشنز ہیں، کوئی اسکولز ہیں، کوئی خانقاہ ہے، کوئی آفیسز ہیں، ایسے ہوتا ہے نا برادری کے ہیں، خالی ہے تو وہاں پر ویسے بچوں کو رہنے کا کھانے کا انتظام کیجیے۔ ٹیچر کی ذمہ داری میری ہے، ٹرین ٹیچر کی سیلری ہم دیں گے، آپ رہنے کھانے کا انتظام کیجیے۔ انڈیا میں 27,000 مدرسے ہیں، جس میں سے 5,000 مدرسے یہ کام کر لیں تو 2.5 لاکھ بچوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اور 2.5 لاکھ کا مطلب ہے کہ ایسے پریشان حال بچوں کا 15% مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک طرف بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچانا ہے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ بچوں کو لا کے اسکول سے جوڑنا ہے، ان کو اخلاق سے سنوارنا ہے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ 16 کمروں کی بلڈنگ کل ہی سے آپ کے حوالے ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں پہ ہے؟ میرٹھ سٹی میں سینکشن۔ رہنے کھانے کا انتظام کیجئے، تربیت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی، ٹیچر کی ذمہ داری ہماری، اور تعلیم چالو کریں گے۔ 50 بچوں کو ڈھونڈ لیجئے، 1200 ٹیچر کو ہم ٹرین کر رہے ہیں۔ آپ کوئی نوجوان قابل نوجوان کو جانتے ہیں، ان کو ٹیچنگ کے پروفیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں تو 20 دن کی فری ٹریننگ ہے۔ shaheengroup.org اور madrasa+.org پہ جائیے، وزٹ کیجئے، اور وہاں پہ ان کو فری ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جنریشن کو ہم ٹیچر بنانا چاہ رہے ہیں اور ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ بیدر میں آپ سنے ہوں گے عظیم قریشی صاحب کے گھر میں 6 ڈاکٹر ہیں، سگے ان کے بیٹیاں، اور جملہ 13 ڈاکٹر ان کے گھر میں ہیں فی الحال، جس میں سے 9 MD ہیں، وہ اپنے بہو داماد ملا کر 13 ڈاکٹر ہیں۔ اب نواسی میں ڈاکٹر بننا شروع ہوئے۔ ایک بچی عشرت کو ہم لیے تھے، اس سے متاثر ہو کے نصرت
आगे बढ़ी। अजीम अकरम कुरैशी, इस तरह से जो है सिलसिला चल रहा है। एक एक बच्चे से एक एक ख़ानदान बदल सकता है, एक एक बच्चे से एक एक इलाके पर असर होता है, एक एक कबीले में फ़र्क पड़ता है। आप लोग तालीम को तवज्जो दीजिए, अल्लाह आपकी कमी में बरकत दे, घरों में सेहत दे, और एक ये कबीला जो है इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एक बरकत का ज़रिया बनेगा। आप लोग हमको मुसलमान बाकी रहने में मदद करते हैं, सुबह सुबह उठते ही हम खाते हैं माशाअल्लाह। हमारे नबी कुरैशी साहब हमारे दोस्त हैं, हम मिलजुल के कुछ काम कर रहे हैं। अभी कहाँ गए थे हम? झारखंड गए थे। एक बड़ा स्कूल आप बनाए हैं, दुआ कीजिए, वहाँ पर भी हम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हम मिलजुल के काम करेंगे इंशाअल्लाह। शाहीन ही काम करे, इंडिया पे कब्जा करे, ये हमारा मकसद नहीं है। शाहीन जैसे, शाहीन के कल्चर वाले, शाहीन के साइज़ के हमारे मुल्क को 500 सेंटर की ज़रूरत है। आपकी बरादरी की तरफ से आप पास माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं, माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं, आगे बढ़िए। और मैं आपको दावत देता हूँ, बीदर आइए जी, जज़ाकल्लाह जज़ाक, बीदर आइए, आप हमारे मेहमान रहेंगे। देखिए छोटा मोटा काम हो रहा है, और मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ जहाँ भी कहीं जा रहा हूँ, आइए शाहीन देखिए। ताजमहल देखने से ज़्यादा खुशी नहीं तो पैसे वापस। एक हीरा भी मेरे साथ है यहाँ पे, बड़ा कीमती हीरा है, अरबाज, कम हीरा। अरबाज के बड़े भाई माशाल्लाह फाइनल ईयर में होंगे। इनके वालिद साहब जो है यहाँ पे दिल्ली में एम्स कॉलेज का स्टूडेंट है, ऑल इंडिया 95th रैंक लाया है बच्चा। वालिद साहब बीमार हैं, कॉलेज का शिकार हैं, बेड पे थे और ड्राइविंग करते हैं, लारी चलाते थे, कॉलेज का शिकार हैं, बेड पे हैं। बच्चा मेहनत करा माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे की खिदमत करने का मौका अल्लाह हमको दिया, आज हीरा है, हीरा। एम्स कॉलेज इंडिया का टॉप कॉलेज में माशाल्लाह। इनके भाई भी बीएमसी में करे, एमबीबीएस हो गया, 2 रुपये खर्च नहीं हुआ, मिन जानिब अल्लाह जो है रास्ते निकाला। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी एम्स कॉलेज में जा सकता, एम्स दिल्ली में जा सकता, ताकत के साथ गया। ये तो इत्तेफाक है कि मुझसे मिलना चाह रहे थे, यहाँ आए हैं। मैं एयरपोर्ट तक जाते हुए रास्ते में बात करूँगा माशाल्लाह। और आप लोगों में से आइए, इरादा कीजिए, जब भी आएंगे हमारे नबी कुरैशी साहब का फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, आप उनको इत्तला कीजिए, आप हमारे मेहमान आएंगे। जज़ाकल्लाह। ट्रैफिक की वजह से मैं लेट भी हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों को देखकर रुक गया, थोड़ा रिस्क भी ले रहा हूँ, एयरपोर्ट पहुँचना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको तो डॉक्टर बनाने की मशीन कहते हैं लोग, कि डॉक्टर बनाने की मशीन है, तो शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर। हाँ, कदीर खुदा। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त बहुत हो चुका है, अब जितने वक्ता थे मैं उनसे माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और सर चलिए, हाजी शराफत हुसैन कुरैशी साहब, राष्ट्रीय महासचिव कुरैश कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एक मिनट लूँगा। सब लोगों का नीचे खाने का इंतज़ाम है और सबका अवार्ड है, यहाँ अपने अवार्ड लेकर जाएं, अपने सर्टिफिकेट लेकर जाएं। कोई भी हजरात अभी ना जाए, नीचे खाना खा कर जाएं। जी एडवोकेट साहब। अल्लाह ताला जो है हमारे ज़ाहिरी और बातनी सब अहवाल से वाकिफ़ है। सारे मुकर्रिरीन हजरात ने अपनी अपनी बात तफसील से रखी, और मैं उन सारी बातों की तायीद करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आज हम, जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट नफीस कुरैशी साहब ने बरजस्ता कहा कि हम 2-4 बातें करेंगे। तकरीर का मौजू नहीं है, बल्कि बिरादरान कुरैश की खिदमत का मौजू है। हम आज 67 साल की उम्र में ये प्लेटफार्म हमें पहली बार नसीब हुआ है। और मैं अपने बारे में आपको तारुफ करा दूं
کہ میرے والد محترم کسی ٹال پر لکڑیاں پھاڑتے تھے اور وہ مزدوری لا کر کے گھر میں کھانا بنتا تھا. میں اس کا پڑھا ہوا ہوں اور میرے 7 بہن بھائی ہیں, سب ویل ایجوکیٹڈ ہیں. انہوں نے ان پڑھ والد نے اور والدہ نے ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جب ہماری شہرت اور معروفیت کا وقت آیا تو اس دنیا سے فانی ہو گئے, چلے گئے, رخصت ہو گئے. آج وہ خوش ہوتے. ہم سنتے تھے جمعیت القریش کے بارے میں تو ہم اپنے ماما کے ساتھ, اپنے چاچا کے ساتھ جمعیت القریش کے فنکشن میں جاتے تھے. ٹھیک ٹھاک عمر تھی, 18-14 سال کی عمر تھی. لیکن جب ہم اپنے ان کو عزیز رشتہ داروں کو دیکھتے تھے جن کے کاروبار ہماری شریعت کے اور ہمارے سماج کے خلاف تھے, اور ہم نیچے دری پہ بیٹھتے تھے اور وہ اونچے اسٹیج پر بیٹھتے تھے. ان کے گلے میں مالائیں ہوتی تھیں اور جب وہ اترتے تھے تو کھانے اور دسترخوان سجتے تھے. کوئی ہم سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ شرافت تم بھی آ جاؤ. تو اس وقت ہمیں ملال ہوتا تھا, ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ بنا کہے تو کسی کے گھر جا بھی نہیں سکتے. لیکن یہاں تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ تم بھی کھانا کھا لو, تمہیں اتنی دیر ہو گئی سنتے سنتے, بھوک لگ رہی ہوگی, کھانا کھا لو. نہیں کہتے تھے. گھر آ کر کے ہم سسک کے روتے تھے, پلکوں میں ہمارے آنسو ہوتے تھے. اپنی والدہ سے ہم کہتے تھے کہ اب ماما کے ساتھ مت بھیجنا, اور پھر کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتے تھے ماما کو گھر میں بھی گھسنے مت دینا. اسی طرح سے ہمارے ماما, ہمارے چاچا جمعیت القریش کے عہدیداران بنے. لیکن میں نے کل عاشقین صاحب سے ایک بات سنی کہ ایک ڈائری ہوتی تھی, اور ڈائری میں جمعیت القریش رہتی تھی, اور اسی میں یس اور اسی میں نو سب کے عہدے پنپ جاتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے. اور مجھے احساس ہوا کہ 70 سال کی آج زندگی یہ کیسے ہم نے اپنے گنوا لی. مجھے اپنے محترم سلیم صاحب کے آنسوؤں پہ رونا آتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے زندگی. یہ اندھے گونگے بہروں کی زندگی ہو گئی ہماری. آج ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے الہ آباد یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری لینے کے بعد منصف مجسٹریٹوں کو شرافت قریشی نے پڑھایا ہے. اور اتر پردیش کے ضلعوں میں میرے پڑھائے ہوئے بچے آج منصف ہیں, سول جج ہیں. مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں لکڑی پھاڑنے والے کا بیٹا اس مقام پر پہنچا. میں زیادہ تو تفصیل سے اس لیے نہیں کہنا چاہتا, وقت بھی کم ہے اور ساری باتیں سامنے آ گئیں. یہ تکلیف میں نے اپنے یوسف صاحب جو ہمارے قومی ترجمان ہیں ایک بار شیئر کی تھی, اور میں نے بڑی تکلیف کے ساتھ بیان کی تھی. میں اس میں رونے بھی لگا تھا. میں اپنے صدر صاحب سے اور سینئر نائب صدر صاحب سے اور عاشقین صاحب سے, میں نے ان کو 3 مورتیوں کا لقب دیا ہے کہ ہندوستان کے اس سرزمین پر دلی میں 3 مورتی پر مسز گاندھی پورا ہندوستان چلاتی تھی. اس 3 مورتی پر مجھے شرف حاصل ہوا تھا مسز گاندھی سے ملنے کے لیے. میں امیٹھی کے ان کے بیٹے سنجے گاندھی کے الیکشن میں تھا, اور اس الیکشن میں تھا میں جب بہت سستا تھا, لیکن میں نے اس آفس کی چائے نہیں پی, میں نے اس کا پانی نہیں پیا, تو میری اس سنجے گاندھی نے کمر ٹھوکی تھی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن میں جب اس 3 مورتی پر دیکھا مسز گاندھی کو, اس کی نفاست, اس کی بات چیت, اس کا اخلاق, تو مجھے لگا کہ ایسی باتیں ہم میں کیوں نہیں آئیں گی. ہم بھی تو تعلیم یافتہ ہیں, ہم بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آج خورشید عالم صاحب ہمارے بزرگ چلے گئے عالم, انہوں نے اس بات پہ دھیان دیا کہ ہم علم کے ساتھ ادب کا گہوارہ بھی ہیں, ہمیں تہذیب اور تمدن بھی سیکھنا چاہیے. ہم قریشی ہو کر کے دوسری قوموں میں بدنام ہیں, ہمیں قصائی کہہ کے پکارا جاتا ہے, لیکن جب وہ مجھے سنتے ہیں تو سجدہ رہ جاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں. اس لیے اگر کسی آدمی کو ذلیل اور خوار کرنا ہو تو آپ تہذیب اور تمدن کے دائرے سے مت جائیے, مت ہٹیے, آپ اپنے اخلاق سے مت گریے.
हम कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से ये दरख्वास्त करते हैं इन हजरात से कि ये जितनी कौम बैठी है ये सब आपके ऊपर उम्मीद और आस लगाए बैठी है, जो इनको 70 साल से आज तक कुछ नहीं मिला। ये जितने भी बुजुर्ग थे यहाँ, उसमें बैरिस्टर सत्तार कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात जयपुर में हुई थी सन 75 में, और उस वक्त मैं यंग था। मुझे कुरैश बिरादरी के मेरे चाचा मामा ले गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे पसंद किया और मैं बोला उनके वहाँ जयपुर में, तो उन मामा चाचा ने होटल में ठहराना तो बहुत दूर, मुझे खाने को भी नहीं पूछा रात को। तो मैं मदार में चला गया, और मदार में जाने के बाद में चप्पल चुरवा दिया अपने, जेब में खाने को पैसे नहीं। फिर पैदल पैदल मैं उस मुसाफिर खाने आया। तो अल्लाह भला करे कि इब्राहिम साहब पता नहीं अब है नहीं है, उन्होंने जब मेरी आंखें देखी और भूख की तड़प देखी, उन्होंने अपने घर बुला के मुझे खाना खिलाया। ये सारी बातें मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि मेरे ऊपर बीची भी है। मैं आज 67 साल का आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कोई गोली नहीं खाता, कोई टैबलेट नहीं खाता, कोई सिरप नहीं पीता। सिर्फ 2 बातें याद रखिए, हकूकुल इबाद और ईमान को सालिम रखिए अपने। सच को कहिए, सच सच है, झूठ झूठ है, और अदल अदल है। मुझे उस्मान साहब की बात पसंद आई कि झूठ और हराम हम खुद जानते हैं, ये अल्लाह और मेरे दरमियान है। मेरी ना माँ जानती है, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, हम खुद जानते हैं। और चेहरा खुली किताब है कि आप हरामी हैं या शरीफ हैं या गुंडे हैं या लुच्चे हैं, लफंगे हैं। मैंने अपनी कुरैश कॉन्फ्रेंस से बहुत बर्जस्ता कहा है कि पैसे वाले भी हैं कुरैश बिरादरी में, लेकिन कुरैश बिरादरी के पैसे वाले वो भी हैं जिनका कारोबार हमसे मेल नहीं खाता। वो मिंबर बन सकते हैं, लेकिन ओहदे पे अल्लाह के वास्ते उनको न लीजिए, वरना हम दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको झेल नहीं पाएंगे और वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सब हजरात से गुजारिश है कि मैंने सदर साहब से अपने साले का टेलीफोन मुरादाबाद से कराया। वो बहुत तारीफें कर रहा था। मैंने कहा तुम अपने सदर को फोन करो। 20 मिनट हो गए उसको फोन करता रहा और मुझसे झूठ बोलता रहा, इंगेज जा रहा है, बात नहीं हो रही, फोन नहीं उठ रहा। मैंने कहा हमारे सदर साहब को मिला ले, चल अपने नंबर से मिला ले। उसने नंबर मिलाया, हमारे सदर साहब का फौरन उठा लिया। तो सारे लोगों ने उसको जलील किया। इसलिए कि मैं सदर साहब से ये उम्मीद करता हूँ, एक दिन का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा हमारे सदर साहब से, नायब सदर साहब से और सेक्रेटरी साहब से बराह रास्त फोन पे बात कर सकता है। हमें आज तक नसीब नहीं हुआ। तो इसलिए सिर्फ 2 बातें कहनी है, कुरैश कॉन्फ्रेंस को मजबूत कीजिए। जहाँ जहाँ हमारे सदर हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्टेट के सदर हैं, वो जल्दी से जल्दी इसको पाए तकमील तक पहुँचाएं, इसको मजबूत करें। आज हम कह रहे हैं ले लो ले लो, कल इंशाअल्लाह ताला वो कहेंगे दे दो दे दो। तो ले ले और देने में फ़र्क है। आज हम कह रहे हैं ले लो, तो अल्लाह के वास्ते जितने भी हमारे सदर साहिबान हैं, जल्दी से जल्दी अपनी कमेटी बनाएं, ताकि इस दिल्ली में आपका कुरैश भवन बन सके और बिरादरी का हर नुमाइंदा कुरैश भवन में आके ठहरे, और हर बच्ची पढ़ने के बाद अगर उसका सेंटर दिल्ली पड़ता है तो वहाँ हिफाजत के साथ ठहरे, अपना इम्तहान दे, कामयाबी हासिल करे। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ मैं आपसे, क्लियर करके, जिस किसी के मन में कोई भी तकलीफ, कोई भी भभक या चसक हो, वो कुरैश कॉन्फ्रेंस से बराह रास्त राब्ता कायम करे और अपनी तकलीफ को दूर करे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सनोवर अली कुरैशी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालातों से हमें जो है रोशनास करें। और नदीम अकबर साहब और अब्दुल नबी कुरैशी साहब से जो है माफ़ी चाहूँगा कि इनके वक्त देखते हुए जो है काट दिया गया है। सदर साहब को वक्त दिया। जी जी, बेंगलोर में आपको सुनेंगे इंशाअल्लाह। और आज पूरा दिन बहुत बातें हुई। हमारी कमेटी का हर मेंबर, हर पदाधिकारी सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें, मगर हमारे घर की ख्वातीन भी चाहती हैं कि कुछ ना कुछ हो। तो इसमें फहरिस्त में हमारे सदर साहब की अहलिया, हमारी भाभी, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मेरे सदर साहब का बिल्कुल साथ देती हैं, हम लोगों का साथ देती हैं। कल 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किचन संभाला, जितने मेहमान आए उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, रोटी का इंतज़ाम किया। इसी तरह
मेरी भी वालदा अल्लाह उनको हर बीमारी से दूर रखे मौजूद हैं। मेरी वालदा भी हमेशा बिरादरी के लिए तैयार रहती हैं और कभी भी 10-20 लोग आ जाए तो उनके खाने के लिए रात के आधी रात को भी तैयार हैं। तो ये दोनों जो लेडी हैं ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट करती हैं और मेरी आंखों से देखो मैं भावुक हो रहा हूँ क्योंकि एक मेरी वालदा है, एक मेरी बड़ी भाभी है। मैं उनको माँ समान दर्जा देता हूँ क्योंकि मैं सनोवर भाई को अपना उस्ताद मानता हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सनोवर भाई की जो है मेरी तरफ लगन और मोहब्बत है। इन दोनों ख्वातीन के लिए भी दुआ करें, मेरे सदर साहब के लिए भी दुआ करें। सलीम साहब मेरे साथी हैं, मेरा हमेशा साथ देते हैं, इनके लिए भी दुआ करें। और मेरा पार्टनर है रफीक उमर, मैं काम इस पर छोड़कर कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं अपने लाखों रुपए के कारोबार को रोजाना का छोड़कर इसके ऊपर और मैं अपने कुरैश कॉन्फ्रेंस को वक्त देता हूँ। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें और हमारा साथ दें। सदर साहब अपनी बात रखें।